اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ اہل بیت ہینا حیدر پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں، غیبت اور ظہور۔ یہ امام زمانہ کے اوپر کچھ پروگرام ہیں جو ہمارے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے حضرت عباس کے اوپر۔ حضرت عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی دعا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ، اگر دیکھا جائے کہ امام حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ یا علی اس بیٹے کا نام عباس رکھیے گا۔ جن بیٹوں کے امام، جو بیٹے جنت کے سردار ہیں، تمام مردوں کے سردار ہیں، ان بیٹوں کی موجودگی میں جناب فاطمۃ الزہرا دعا کر رہی ہیں، پروردگار مجھے عباس عطا کر، یا علی اس کا نام عباس رکھیے گا۔ یا علی آپ کے نام سے میں نے عین کو لیا، میں پردے دار ہوں، میں اپنا نام نہیں دے سکتی، اپنے لقب بطول سے میں نے بے کو لیا۔ یا علی اپنے بابا احمد کے نام سے میں نے الف کو لیا، اپنے دونوں بیٹوں حسنین کے نام سے میں نے سین کو لیا، میں نے اسے عباس کہہ دیا۔ کیا نام ہے مولا کا! اگر ہم اس مولا عباس کے نام کے عدد نکالیں نا تو عین کے 70 ہیں اور بے کے 2 ہیں، اور انہیں جمع کریں تو 72 بنتا ہے۔ جو اپنے نام کے آدھے حروف میں پوری کربلا کو سمو لے اسے عباس کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اگر آگے چلیں تو مولا عباس کے الف کے 1 اور سین کے 60 انہیں جمع کریں تو 133 بنتے ہیں۔ اور جناب عباس کی تسبیح بہت ہی مشہور ہے، یا کاشف الکربے والی۔ اگر کوئی بھی مشکل میں ہو اور یہ تسبیح 133 بار پڑھ لے تو مشکل سے مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ پروردگار نے جناب عباس کو بہت مرتبے دیے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے حضرت عباس کو ہاتھوں پہ لیا تھا نا تو کہا تھا یا قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے قمر۔ یہاں قمر سے مراد کوئی چاند وغیرہ نہیں ہے، یہ گھرانہ اس بات سے بہت ماورا، بہت افضل ہے کہ انہیں زمینی چیزوں کے حوالے سے منسوب کیا جائے، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے اس گھرانے کو منسوب نہیں کیا جاتا، ان کے فضائل بہت ماورا ہیں۔ یہاں قمر سے مراد کوئی چاند نہیں ہے، بلکہ یہاں قمر سے مراد آپ کے کمالات ہیں، آپ کے فضائل ہیں۔ اے کمالات کے مظہر، اے کمالات کے چاند، اے کمالات کے ہاشم، ہاشمیوں کے کہنا چاہیے کمالات جس میں ضم ہو جائیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ دیکھیں کربلا ایک دن کی کہانی کا نام کربلا نہیں ہے، یہ عالم ارواح میں پروردگار نے عہد لیا تھا، تمام انبیاء کی ارواح موجود تھیں، 1,24,000 انبیاء کی ارواح موجود تھی، تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، ان سب کی ارواح موجود تھی، اور پروردگار نے کہا تھا ہے کوئی میرا عاشق؟ امام حسین کی روح آگے بڑھی تھی، پروردگار تجھ سے عشق میں کروں گا۔ کہا حسین شہادتیں دینی پڑیں گی، شہادتیں ہوں گی۔ کہا لکھ پروردگار پہلا نام حسین ابن علی لڑے گا۔ پروردگار نے کہا حسین تم لڑو گے؟ کہا ہاں میں لڑوں گا۔ کہا پروردگار پھر دوسرا نام لکھ عباس ابن علی، دوسرا نام عباس کا۔ آواز قدرت آئی حسین کیا عباس لڑے گا؟ حسین کی روح نے کہا ہاں پروردگار عباس لڑے گا۔ آواز قدرت آئی حسین اگر عباس لڑے گا تو 9 لاکھ تو کیا 9 خدائیاں عباس کو نہیں اتار سکتی، اگر عباس لڑے گا تو عباس کو کچھ دینا بھی پڑے گا۔ حسین کی روح نے کہا کیا دینا پڑے گا؟ آواز قدرت آئی اگر عباس لڑے گا تو عباس کو 2 بازو دینے پڑیں گے۔ ادھر بات 2 بازوؤں کی آئی، حسین کی روح خاموش ہوئی، عباس کی روح آگے بڑھی۔ کہا پروردگار میں تو 2 بازو دوں گا، یہ بتا کہ تو کیا دے گا؟ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اللہ سے سودا کرتا ہے، اس گھرانے کے پاس وہ پرچیزنگ پاور ہے جو اللہ سے سودا کر سکے۔ ہم بازار تبھی جاتے ہیں جب ہمارے پرس میں، ہمارے والیٹ میں منی ہو، پرچیزنگ پاور ہو، ہمارے پاس کرنسی ہو۔ ہم بازار تبھی جاتے ہیں کہ جب بازار سے چیزیں خرید سکے۔ اس گھرانے کے پاس وہ پرچیزنگ پاور ہے جو اللہ سے سودا کر سکے۔ اس نے ایک بار علی سے کہا تھا علی سو جاؤ بستر رسول پہ، آسان نہیں تھا علی کے لیے سونا، جانتے تھے 40 قبیلوں کے سردار تلواریں نیام سے نکالے ہوئے چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، موت یقینی ہے۔
अली ने ये नहीं पूछा था बारे इलाहा कि मेरी जान बचेगी या नहीं बचेगी, बस मौलाए कायनात ने एक सवाल किया था, परवरदिगार क्या मेरे सोने से रसूल बच जाएंगे? कहा हाँ अली तुम्हारे सोने से रसूल बच जाएंगे। कहा परवरदिगार मैं सोने के लिए राज़ी हूँ। खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं अली, लेकिन कहा बदले में ये बता परवरदिगार तू क्या देगा? अली के पास वो परचेजिंग पावर थी जो अल्लाह से सौदा कर सके। अल्लाह ने कहा अली सो जाओ, मर्जियाँ तुम्हारी हैं। अली ने एक रात सो के मर्जियाँ खरीद ली। इसी तरह अब्बास पूछ रहे हैं परवरदिगार मैं तो 2 बाजू दूंगा, ये बता बदले में तू मुझे क्या देगा? आवाज़ कुदरत आई, अब्बास अगर तुम 2 बाजू दोगे, मेरा वादा है बिन बाजुओं के खुदाई या तेरी होगी या मेरी होगी। यहाँ हम देखते हैं कि बिन बाजुओं की हुकूमत या तो परवरदिगार की है या बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास की है। आज भी अगर हम पे, मैं ये नहीं कहूँगी अहले तशय्यो, ज़माने में जितने भी हैं, जब भी वो अब्बास का अलम देखते हैं तो अब्बास के अलम के नीचे ज़रूर आके दुआ मांगते हैं। दूसरा वादा परवरदिगार ने यह किया था कि अब्बास इतनी मेरे नाम की मस्जिदें नहीं मिलेंगी जितने मैं तेरे नाम के अलम नस्ब कराऊंगा। और आज अगर हम दुनिया में देखें तो मस्जिदें काउंट कर सकते हैं, अलम काउंट नहीं किए जा सकते कि दुनिया में कितने अलम हैं माशाल्लाह। यूनान कट्टर यहूदी मुल्क है, कट्टर यहूदी मुल्क, और वहाँ यूनान में किसी आलिम को जाने की इजाज़त नहीं है कि कोई आलिम यूनान में चला जाए। जब यूनान में कुछ अर्सा पहले, पिछली सदी की बात है, ओलंपिक्स हुए थे, सऊदी अरब वाले बहुत से खिलाड़ी यूनान गए थे और सऊदी अरब वालों ने बहुत कहा, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने बहुत यूनान से रिक्वेस्ट की कि एक मस्जिद तामीर करा दें, हमारे खिलाड़ी आएंगे, नमाज कहाँ अदा करेंगे? लेकिन यूनान वालों ने मस्जिद तामीर करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जहाँ पे वो यूनान में ओलंपिक्स हुए थे वहीं आज इमाम बारगाह ज़ैनबिया मौजूद है, मौला अब्बास का अलम मौजूद है। नॉर्वे को दुनिया का एंड माना जाता है, जहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है, वहाँ इंसान नहीं रहते, लेकिन वहाँ पे भी देखा गया है कि मौला अब्बास का अलम मौजूद है। सुभान है, परवरदिगार ने ये वादा किया था अब्बास अगर तुम बाजू दोगे तो तुम्हारे नाम के अलम। अगर हम सिंध में ही चले जाएं ना तो माशाल्लाह हमें इतने अलम मिलेंगे कि इतनी कायनात में हमें मस्जिदें नहीं मिलेंगी जितने हमें मौला अब्बास के अलम मिल जाएंगे। और अगर अलम की गुफ्तगू करूं, अलम पे बात करूं, ये कोई मामूली अलम नहीं है। जब परवरदिगार ने जनाब शीस को हुक्म दिया था, और ये मैं तौरात से पढ़ रही हूँ, तौरात में भी इसका तस्करा मौजूद है और कुरान में भी इसका तस्करा मौजूद है, और हमारी अहले तशय्यो की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें ये तस्करा मौजूद है कि जनाब परवरदिगार ने जनाब शीस से कहा था कि काबिल से बदला लो हाबिल के खून का, क्योंकि उस ज़माने में आदम की नस्ल बहुत तेज़ी के साथ फैल रही थी। परवरदिगार ने जनाब शीस को हुक्म दिया कि काबिल से बदला लो। जनाब शीस ने कहा बार इलाहा मेरे पास तो ना लश्कर है ना कुछ सामान है, मैं कैसे जनाब काबिल से जनाब हाबिल के खून का बदला लूँ? कहा तुम एक बांस का इंतज़ाम करो, एक लंबे से बांस का इंतज़ाम करो, फरेरा जन्नत से आएगा, अलम का फरेरा जन्नत से आएगा, बांस में लगा देना, इस बांस को नस्ब किसी ऊंचे मुकाम पे कर देना। इस अजीब व गरीब चीज़ को देख के तुम देखोगे खिलकत खुद ब खुद इसके साए में जमा हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ, जैसे ही जनाब शीस ने, फरेरा जन्नत से आया था, सफ़ेद रंग का फरेरा था, अलम में नस्ब करके जब बुलंदी पे गाड़ दिया, जनाब शीस ने देखा लश्कर खुद ब खुद लोग जमा हो गए। और आज भी अगर हम देखें ना कि अगर हमारा कोई बच्चा भी अलम लेके घर से निकल जाए ना, खिलकत खुद ब खुद उसके पीछे चली आती है। ये अलम की कहना चाहिए मौजज़ा है कि वो खिलकत को खुद ब खुद अपने अंदर खींच लेता है। अगर आज भी हम जलूसों में जाएं तो अलम पे जब निगाह पड़ती है तो कहना चाहिए कि मौजज़ात ही अलग होते हैं, उस नज़र की बात ही अलग होती है। और वही अलम का फरेरा चलते हुए ताबूत सकीना तक आया था, जनाब मूसा तक आया था, जिसे जनाब मूसा ने ताबूत सकीना में रखा था। ताबूत सकीना का तस्करा भी कुरान में मौजूद है। और ताबूत सकीना के बारे में कहा जाता है कि बनी इसराइल वाले जब जंग करते थे तो ताबूत सकीना को आगे आगे रखते थे कि इसकी वजह से हमें इस जंग में फ़तह नसीब होगी। क्यों? क्योंकि इस ताबूत में वो फरेरा मौजूद था जो जन्नत से आया था, और वही फरेरा जनाब इब्राहीम को मिला, इब्राहीम से जनाब इस्माइल को मिला, जनाब इस्माइल से होते हुए अदनान को मिला, लवा को मिला, गालिब को मिला, कज़ा को मिला, और यही फरेरा होते होते कनाना को मिला, कनाना से अब्दुल मनाफ को मिला, अब्दुल मनाफ से हाशिम को मिला, हाशिम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मिला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अबू तालिब को मिला, हज़रत अबू तालिब से रसूल खुदा को मिला। रसूल खुदा ने खैबर में यही अलम था जो अली को दिया था, और अली ने सफ़ीन में यह अलम अब्बास को दिया।
सुभान अल्लाह, ये वही अलम है जो जन्नत से आया था और हज़रत अब्बास को मिला था, और यही अलम को लेके हज़रत अब्बास आएंगे जब हमारे इमाम, हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर होगा। यही अलम होगा, यही अलम बरदार होगा हज़रत अब्बास। बहुत बड़े एक राइटर गुज़रे हैं, असद हैदर हाशमी साहब। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि मुज्तहिद बनने के लिए हज़रत हैदर हाशमी साहब की किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो बेजाना होगा। बहुत बड़ा नाम है शियत का, आज के नहीं है, कोई 600-700 सदी पुराने लिखने वाले हैं असद हैदर हाशमी साहब। इन्होंने हर मासूम पे किताबें लिखी हैं, और हज़रत अब्बास पे इन्होंने किताब लिखी है असरार अब्बासिया, यानी हज़रत अब्बास के नाम के असरार, हज़रत अब्बास के असरार। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि इसकी ऐन बताती है ये अलीम है। अलीम कहते हैं जानने वाले को, जो जानने वाला हो। इसकी बे बताती है ये बसीर है। अलीम जानने वाला, और बसीर उसे कहते हैं जो होनी को होनी से पहले जान ले, उसे बसीर कहा जाता है। इसकी बे बताती है ये बसीर है, होनी को होनी से पहले जान ले। इसकी अलिफ बताती है ये अम्र खुदा का मालिक है। हर किसी के पास अल्लाह का अम्र नहीं है। असद हैदर हाशमी साहब कहते हैं इसकी अलिफ बताती है अम्र खुदा का मालिक है। इसकी सीन बताती है ये सिर्र किब्रिया है, अल्लाह का राज है। अभी असद हैदर साहब ये लाइनें लिख रहे थे कि इतने में एक शायर अहले बैत आ गया, आपका दोस्त आके कहते हैं हाशमी साहब क्या लिख रहे हैं? कहा मैं अब्बास पे किताब लिख रहा हूँ। कहा क्या लिख रहे हैं, मुझे दिखाना पसंद करेंगे? मैंने कहा ना आज के नहीं थे, आज से सदियों पहले थे। कहा क्यों नहीं, देखें। अब शायर अहले बैत कहते हैं आपने ऐन से अलीम लिखा, जानने वाला, बे से बसीर, होनी को होनी से पहले जानने वाला, अलिफ से अम्र खुदा का मालिक, बहुत खूब लिखा। सीन से आपने सिर्र इलाही लिखा, अल्लाह का राज, बहुत बेहतरीन। कहा अगर इसमें कुछ शायरी मैं कहूँ तो क्या आप अपनी किताब में उसे शामिल करेंगे? हाशमी साहब ने कहा क्यों नहीं शामिल करेंगे। अब वो शायर अहले बैत कहता है बिलैन अक्स मुर्तज़ा, इसकी ऐन बताती है ये मुर्तज़ा का अक्स है, यानी अली के सामने जो आईना है उसे अब्बास कहते हैं, और अल्लाह के सामने जो आईना है उसे अली कहते हैं। देखें, अगर इसकी मिसाल मैं अपने अल्फाज में दूं तो मुझे यहाँ आने से पहले मैं आईने के सामने गई थी। ज़ाहिर है ये स्कार्फ वगैरह जो मैंने लिया हुआ है इसे पिनअप करने के लिए मुझे आईने के सामने जाना पड़ा। जब मैं आईने के सामने थी तो मेरे कमरे के दरवाजे से कोई गुज़रा, उसने कहा कमरे में एक हिना है। इतने में मेरे कमरे के दरवाजे से एक और गुज़रे, मेरे घर के मिंबर, उन्होंने कहा नहीं, कमरे में दो हिना है, एक आईने के अंदर है और एक आईने के बाहर है। जिसने एक कहा उसने भी सही कहा, और जिसने कहा दो उसने भी सही कहा। अल्लाह के सामने जो आईना है उसे अली कहते हैं। देखें, अगर इसको और ज़्यादा मैं आसान करूं तो हमारा जो जिस्म है ना, ये कसाफ़तों के मजमूए का नाम है। दुनिया में, कायनात में सबसे जिसे कहना चाहिए नजिस तरीन चीज़ है ना, अगर रूह निकल जाए तो हमारा जिस्म है। क्योंकि उल्मा कहते हैं अगर किसी कुएं में कोई कुत्ता गिर के मर जाए ना तो इतने कुर्बानी निकालें कुआं पाक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान गिर के मर जाए तो उल्मा कहते हैं अब ये कुआं पाक नहीं हो सकता, इतना नजिस है अगर रूह निकल जाए। और रूह इतनी ही लतीफ़ और पाकीज़ा है, जब परवरदिगार ने चाहा कि रूह को जिस्म में दाखिल करे तो रूह ने इनकार कर दिया। बारे लाहा, मैं लतीफ़, मैं पाकीज़ा, मैं ताहिर, मैं इस कसाफ़तों के मजमूए में कैसे जाऊं? बस परवरदिगार ने दरमियान में नफ्स को रख दिया। अब दरमियान में नफ्स है, नफ्स ना जिस्म जैसा है ना रूह जैसा है। जिस्म को लगता है नफ्स मुझ जैसा है, रूह को लगता है नफ्स मुझ जैसा है। नफ्स ना जिस्म जैसा है ना रूह जैसा है। वो यहाँ आ नहीं सकता, अगर यहाँ आ जाए तो खुदा ना रहे। हम वहाँ जा नहीं सकते, अगर वहाँ चले जाएं तो दोबारा ज़मीन पे नहीं आ सकते। तो बस परवरदिगार को भी एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो वहाँ जाए तो लगे उस जैसी, यहाँ आए तो लगे हम जैसी, ना वो खुदा हो ना वो इंसान हो। उसने दरमियान में अली को रख दिया। यहाँ आता है तो लगता है हम जैसा है, अली ना हम जैसा है। जब वहाँ जाता है तो लगता है खुदा जैसा। अली खुदा नहीं है, अली अली है, अली नफ्स खुदा है। इसलिए दरमियान में अल्लाह के सामने जो आईना रखा है उसे अली कहते हैं, और अली के सामने जो आईना रखा है उसे अब्बास कहते हैं।
شاعر اہل بیت کہتے ہیں بالعین عکس مرتضیٰ، اس کی عین بتاتی ہے یہ مرتضیٰ کا عکس ہے، بالبائے قرآن وفا، اس کی بے بتاتی ہے یہ وفا کا قرآن ہے، بالالف امر خدا، اس کی الف بتاتی ہے یہ امر خدا کا مالک ہے، بالسین سر کبریا، اس کی سین بتاتی ہے یہ کبریا کا راز ہے۔ سبحان اللہ، انہیں عباس کہتے ہیں۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جناب حضرت عباس کی بھی رجت ہوگی، ان کا بھی دوبارہ سے آنا ہوگا، اور انشاءاللہ جو امام کے کہنا چاہیے علمبردار ہیں وہ حضرت عباس ہی ہوں گے، امام کا جو علم ہے وہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی الفاظ کے ساتھ کل کیا ہم پروگرام کا آغاز کریں گے یہیں سے کہ امام کے ظہور کے بعد کیا کیا ہوگا۔ آج کا پروگرام یہیں تک، اجازت دیجیے۔ ذاکرہ اہل بیت حنا حیدر، اللہ حافظ۔